ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ خلاق العلیم کی حمد و ثنا اور تاجدار عرب و عجم فخر آدم و بنی آدم سبب تخلیق کائنات آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات و برکات پر ہدیہ درود و سلام کے بعد عزت و احترام کے لائق حضرات علماء کرام، معززین علاقہ، مائیں بہنیں اور بیٹیاں جو سارے کے سارے آج اس دعائیہ تقریب سعید میں موجود ہیں، دعا خلق کائنات ہم سب کا آنا، مرحوم کے حق میں دعا کرنا قبول فرمائے اور مرحوم مغفور کو جنت میں اعلیٰ مقام اور مرتبہ عطا فرمائے۔ وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ میں لمبی چوڑی بات کروں، علماء کرام کے اسماء گرامی لوں، معززین علاقہ کو خراج تحسین پیش کروں، اہل خانہ کو میں تعزیت الفاظ ان کی خدمت میں عرض کروں۔ وقت مختصر ہے، مقررہ وقت پر دعا کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم سارے کے سارے مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ ہم سارے کے سارے نبی آخر الزمان، امام الانبیاء، محبوب کبریاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ اس کو اگر سمجھا جائے تو بندے کے سارے معاملات حل ہو جاتے ہیں کہ وہ نبی جس کا امتی بننے کے لیے سابقہ انبیاء دعائیں کرتے تھے، اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو اس پیارے محمد کا بن مانگے امتی بنا دیا۔ اس مخصن کائنات کے قلب سلیم پر قرآن نازل ہوا جسے کلام الہی کہتے ہیں۔ یہ قرآن اصل میں کلام خدا ہے اور زبان ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ اگر آپ گہرائی میں جائیں تو آپ اس بات پر ناز کریں گے کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں کہ خدا جب بھی بولتا ہے اس پیارے محمد جناب محمد رسول اللہ کی زبان سے بولتا ہے۔ بسم اللہ کی با سے لے کر والناس کی سین تک یہ سارا کا سارا قرآن کلام الہی ہے۔ بولیں یہ کیا ہے؟ کلام الہی ہے۔ جہاں یہ کلام الہی ہے، یہ زبان مصطفیٰ ہے، اور اس قرآن کی عظمت اور رفت کا کیا کہنا جو کلام خدا کا ہو، زبان مصطفیٰ کی ہو۔ اللہ پاک ازل سے بولتا ہے، ابد تک بولتا رہے گا، مگر اس نے اپنی امت کے، اپنے محبوب کی امت کے لیے ایک نصاب بطور قرآن مقرر فرمایا۔ آپ پہلی جماعت میں جائیں گے، اس کا نصاب الگ ہے۔
आप दूसरी जमात में चले जाएं उसका निसाब अलग है, तीसरी में जाएं उसका निसाब अलग है। अल्लाह पाक ने अपने हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए इस कुरान को बतौर निसाब मुकर्रर फरमाया। क्या फरमाया? बतौर निसाब मुकर्रर फरमाया। और इस कुरान के निसाब में खालिक़ कायनात ने अपने हबीब के उम्मत के लिए अहले ईमान का भी एक अलग से निसाब मुकर्रर फरमाया। वो क्या था? अल्लाह का कुरान कहता है ला ताबुदूना इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं। ये एक बुनियादी मसला है। अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, अल्लाह के सिवा कोई सर झुकाने के लायक नहीं, अल्लाह के सिवा कोई सजदे के लायक नहीं, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अल्लाह ही है जो मांगने के लायक है, अल्लाह ही है जो सर झुकाने के लायक है, अल्लाह ही है जो इबादत के लायक है, अल्लाह ही है जो हमारे जबीन न्याज के लायक है। अहले ईमान को बता दिया ला ताबुदूना इल्लल्लाह, आ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों, अल्लाह के सिवा कोई इलाह, ऊंची बोलो, अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं है। लेकिन शरीयत इस्लामिया में इबादत का माना बड़ा वसी है। वक़्त के दामन में वुसअत नहीं, मैंने बहुत सारी बातें करनी थी इख्तिसार के साथ। हुजूर सरवर कायनात की शरीयत में इबादत का माना बड़ा वसी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कोई बंदा सुबह घर से निकला, नमाज फजर अदा की, मजदूरी करता है, दुकान पे जाता है, पत्थर का काम करता है, खेती बाड़ी करता है, मेहनत और मजदूरी करता है, हलाल कमाता है कि हलाल कमाऊंगा, खुद भी खाऊंगा, अपने बीवी बच्चों को खिलाऊंगा। मेरे पैगंबर ने फरमाया बज़ाहिर वो कारोबार कर रहा होता है, रब की बारगाह में इबादत कर रहा होता है। बज़ाहिर वो दुकान कर रहा होता है, फरिश्ते लिखते हैं रब का बंदा हुजूर का उम्मती इबादत कर रहा है। बज़ाहिर वो खेती बाड़ी कर रहा होता है, फरिश्ते लिखते जाते हैं ये मोहम्मद का उम्मती इबादत कर रहा है। अब हम खाना खाते हैं और पानी पीते हैं। सरवर कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो सुन्नत के मुताबिक पानी पीता है, सर डाम के पानी पीना सुन्नत है, बैठ के पानी पीना सुन्नत है, 3 सांस में पानी पीना सुन्नत है, पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है, पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना सुन्नत है, और फिर दाएं हाथ में प्याला गिलास पकड़कर पानी पीना क्या है? बोलो, सुन्नत है। जो इस तरह पानी पीता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम्हारी प्यास भी बुझ जाएगी, तुम्हें इबादत का सवाब भी मिल जाएगा। आप गाड़ी पे बैठे हैं, यहां से पिंडी जा रहे हैं, चूरा बाजार में आप टोटे पे बैठे, दिल में ख्याल आया कि सवारी करना सरवर कायनात की सुन्नत है, और गाड़ी पर बैठकर जूते उतारना भी सुन्नत रसूल है कि जूते उतार कर सवारी पर बैठकर, यह भी सुन्नत है। आपने जूते उतार दिए, सुन्नत रसूल समझकर आप पिंडी की जानिब जा रहे हैं, और मुस्तफ़ा की हदीस के मुताबिक उम्मत मुहम्मदिया का ये एजाज है, आप पिंडी भी पहुंच जाएंगे, आपको इबादत का सवाब भी मिल जाएगा। अब हम मोहम्मदी हैं, हम क्या हैं? बोलो, मोहम्मदी हैं। और मोहम्मदी जब अपने गले में मुस्तफ़ा की गुलामी का पटा डालता है, उसका खाना भी इबादत है, उसका बैठना इबादत है, उसका सोना इबादत है, उसका जागना इबादत है, उसका कारोबार इबादत है। यहाँ तक कि जो मोहम्मदी बन जाए उसका हर काम इबादत बन जाता है। ला ताबुदूना इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं। और इबादत खुदाबंदी के बाद सबसे पहला हक मखलूक में, सबसे पहला हक मखलूक में अल्लाह के कुरान ने माँ बाप का बताया। मेरे अल्फाजों पे गौर करना, मखलूक में सहाबा भी हैं, मखलूक में जनाबे वाला अल्लाह अकबर औलिया भी हैं, मखलूक में गौस भी हैं, कुतुब अब्दाल भी हैं, खानदान के बड़े भी हैं। इबादत खुदाबंदी के बाद, कलमा तौहीद और रिसालत पढ़ने के बाद अल्लाह की रजा चाहते हो,
नबी की जनाब वाला मुआय्यत चाहते हो, क़यामत के दिन जन्नत चाहते हो, ए अल्लाह की बारगाह में सजदा करने वालों, सजदाए खुदा के बाद तुम पर जो दूसरा हक है और मखलूक में पहला हक है वो तुम्हारे माँ बाप हैं, वो तुम्हारे माँ बाप हैं। मेरे नबी ने फरमाया जो माँ बाप की नहीं सुनता अल्लाह उसकी नहीं सुनता, जो माँ बाप की ताज़ीम नहीं करता उसकी दुआ कबूल नहीं होती, उसकी नमाज कबूल नहीं होती, उसका हज कबूल नहीं होता, उसका सजदा कबूल नहीं होता, उसका जिक्र कबूल नहीं होता। जो माँ बाप की इताअत और इत्तिबा नहीं करता उसके सजदे भी कबूल नहीं होते, चाहे वो क्वाटी मस्जिद में अदा किए जाए, चाहे वो मस्जिद नबवी में अदा किए जाए, चाहे वो बैतुल मुक़द्दस में अदा किए जाए, चाहे वो बैतुल्लाह में अदा किए जाए। सजदों की कबूलियत के पसे पर्दा राज ये है मैं और आप अपने माँ बाप के इताअत गुजार बन जाएं, अपने माँ बाप की फरमा बरदारी करने वाले बन जाएं। तीसरा हक क्या फरमाया, व बिल वालिदैन इहसाना व ज़िल क़ुरबा, तुम्हारे क़राबतदारों का हक है, पड़ोसियों का हक है, रिश्तेदारों का हक है, आइज़ो अक़रबा का हक है, क़राबतदारों का हक भी तुम्हारे ज़िम्मे है। व ज़िल क़ुरबा, आगे फरमाया वल यतामा, अल्लाह की तौहीद को मानने वालों, नबी करीम की उम्मतियों, तुम पर यतामा यतीमों का हक है। अल्लाह के नबी कितना हक है, मेरे नबी करीम ने फरमाया तुम्हें तुम्हारा नबी इस बात से बखबर करता है जब कोई यतीम की परवरिश करता है मैं मोहम्मद अरबी उसको जन्नत की जमानत देता हूँ। मैं उसको क्या करता हूँ, इस जन्नत की जमानत अगर कोई मौलवी दे तो आप शक करें पता नहीं खुद किधर जाएगा, कोई और दे तो शक कर सकते हैं। जन्नत की जमानत उस नबी ने दी कि जिस नबी को खालिक़ कायनात ने जन्नत का मालिक और वारिस बना दिया है। अल्लाह के नबी फिर फरमाया जिस दस्तरख्वान पर यतीम बैठ जाए शैतान वहां शामिल। यहाँ हमारी मजलिस है, दुआया तकरीब है, यहाँ कोई यतीम आ जाए बैठ जाए, इस खाने का हिसाबो किताब, 3 खाने ऐसे हैं कि जिनका हिसाबो किताब नहीं होगा। कितने खाने हैं? एक खाना जिस दस्तरख्वान पर यतीम बैठ जाए उसका हिसाबो किताब भी नहीं होता। दूसरा वो खाना जिस खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी जाए, खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहा जाए, उसका भी हिसाबो किताब नहीं होता। और तीसरा माह रमजान में जो खाता पीता मुसलमान है उसका हिसाबो किताब भी नहीं होता। तीसरी सरवरे कायनात की हदीस मुबारका फरमाया जब तुम मोहब्बत और शफकत के साथ किसी यतीम के सर पे हाथ रखते हो, दिलासा देते हो, तुम्हारे हाथ के नीचे जितने बाल आते हैं उस मिकदार में दिलासा देने वाले के गुनाह माफ हो जाते हैं। हम तो नहीं करते इसलिए कि हमें शाऊर ही नहीं है, हम दुनियादार लोग हैं। जब किसी के सर पे दिलासा दिया जाए, मुझे कोई बंदा ऐसा बताओ कि एक बंदे के सर पे कितने बाल हैं, कोई गिन सकता नहीं, उसके सिवा जिसने सर पे बाल उगाए हैं उसके सिवा कोई जानता नहीं। जब यतीम के सर पे हाथ रखोगे उसके सर के नीचे जितने भी बाल आएंगे उस मिकदार में अल्लाह नेकियां अता फरमाता है, उस मिकदार में गुनाह माफ करता है और उसी मिकदार में खालिक़ कायनात क़यामत के दिन जन्नत में दराजात बुलंद फरमाता है। वल यतामा वल मसाकीन, किसी ने कहा भाई ये जो ख़त्म है ये खैरात है, ये मसाकीन का हक है। माना के मसाकीन का हक है, मसला मैं तीसरे की दुआ पे बयान कर चुका हूँ। मसाकीन का हक ज़रूर है लेकिन ये सदक़े की वो किस्म है जिसको सदक़ा नाफिला कहते हैं, सदक़ा वाजिबा नहीं, सदक़ा नाफिला है। और ये सदक़ा नाफिला अमीर भी खा सकते हैं, गुरबा भी खा सकते हैं। जो सदक़ा वाजिबा है, वाजिबा जिसे कहते हैं, वो सिर्फ मसाकीन खा सकते हैं, एक लुकमा भी अमीर लोगों के लिए खाना जायज़ है। वल यतामा वल मसाकीन, आज हमें अपनी नमाजों पे और अपनी निस्बतों पे बड़ा नाज है। और देखिए जो सहाबाए किबार हैं
हुजूर सरवर कायनात तशरीफ रखते हैं। दो बातें उसके बाद हम दुआ करते हैं। ताजदार सदाकत खलीफा बिला फसल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके विसाल का ये महीना है और गालिबन आखिरी अय्याम है। वो अबू बकर सिद्दीक ये बात सुन के ले जाएं और इसको पल्ले बांधें। मैं भी अपनी इस्लाह करूं, आप भी अपनी इस्लाह करें कि वो सहाबी रसूल कि जिसके बारे में सरवर कायनात ने फरमाया मेरी उम्मत में अंबिया के बाद जो सबसे सच्चा इंसान है उसको अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। वो अबू बकर सिद्दीक शान पहले सुने, अमल बाद में देखना, फिर पता चलेगा कि जिस सहाबी रसूल को अल्लाह के नबी ने दुनिया में कई बार जन्नत की खुशखबरी अता फरमाई, वो भी अमाल से गाफिल। अल्लाह के नबी फरमाते हैं 360 खसलतें ऐसी हैं, उन 360 खसलतों में कोई एक भी किसी बंदे में आ जाए तो अल्लाह पाक उसके लिए जहन्नम के दरवाजे बंद कर देता है, जन्नत के दरवाजे खोल देता है। तो मैं मेरे सहाबा वो 360 सारी की सारी खसलतें अल्लाह पाक ने अबू बकर सिद्दीक में जमा फरमा दी हैं। तशरीफ रखते हैं इमामुल अंबिया महबूब किबरिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा में मौजूद हैं। वहाँ सहाबाए किबार हैं, जनाब उस्मान मौजूद हैं, जनाब अली मौजूद हैं, दीगर सहाबा मौजूद हैं, अबू ज़र ग़िफ़ारी मौजूद हैं। वो अशरा मुबश्शिरान जिन सहाबाए किबार को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया में चलते फिरते जन्नत की खुशखबरी अता फरमाई है। ऐ नबी करीम की उम्मत में आने वालों, आप अंदाजा फरमाएं वो कितना जन्नती होगा, जन्नत में उसका मकाम और मर्तबा कितना बुलंदो बाला होगा, जिसको मेरे आका ने फरमाया अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना। सहाबाए किराम की खुशखबरियां दी जा रही हैं, सहाबा का मजमा है। मेरे आका ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा, तुम में से कौन है जिसने आज अल्लाह की रजा के लिए किसी बीमार की इयादत की है? वोट लेने के लिए नहीं, बरादरी में नाम पैदा करने के लिए नहीं, खानदान की उस रस्म और रवाज को बढ़ाने के लिए नहीं। कौन है जिसने आज अल्लाह की रजा के लिए बीमार की आदत की है? सारे सहाबा खामोश हैं। अबू बकर सिद्दीक खड़े हो गए, अल्लाह के नबी आज मैंने अल्लाह की रजा के लिए जनाजे में एक बीमार की आदत करके भी आया हूं। फरमाया सिद्दीक बैठ जा। सिद्दीक बैठ गए। मेरे आका ने फिर फरमाया कौन है जिसने आज अल्लाह की रजा के लिए किसी की नमाज जनाजा में शिरकत की है? हमारा अपना है, हम जनाजे में जाएंगे, हमारे खानदान का है, हम जनाजे में जाएंगे, हमारे स्टेटस का है, हम जनाजे में जाएंगे, हमारे मेयार का है, हम जनाजे में जाएंगे। वैसा मुसलमान के जनाजे में जाने के लिए हमारा पास वक्त नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कौन है जिसने आज जनाजे में शिरकत की है? अल्लाह अकबर। साहबा खामोश है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फिर खड़े हो गए। सुना नबी आज मैंने मुसलमान भाई के जनाजे में शिरकत भी की है। फरमाया सिद्दीक बैठ जा। सिद्दीक बैठ गए। तीसरा ऐलान फरमाया मेरे सहाबा, तुम में से कौन है जिसने आज किसी मिस्कीन को खाना खिलाया है? सारे सहाबा खामोश हैं। अबू बकर सिद्दीक फिर खड़े हो गए। सुना नबी आज मैंने रब की रजा के लिए मिस्कीन बंदे को खाना भी खिलाया है। अब क़यामत के दिन अल्लाह पूछेगा, मैं अब अल्लाह से मोहब्बत करने वाला हम सारे हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। सूफिया कहते हैं जो अल्लाह के बंदू से मोहब्बत नहीं करता और अल्लाह के बंदू का लिहाज नहीं करता, वो दावत मोहब्बत इलाही में झूठा है। अल्लाह से मोहब्बत वही करता है जो अल्लाह के बंदू से प्यार करता।
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, है कोई बंदा फरमाया जिसने मिस्कीन को खाना खिलाया? अर्ज करते कौनैन के आका, मैंने मिस्कीन को खाना खिलाया है। चौथी बात बयान फरमाई मुखबर सादिक ने, ऐ मेरे सहाबा, क्या तुम में से कोई है जिसने आज अल्लाह की रजा के लिए नफली रोजा रखा है? तमाम सहाबा खामोश हैं। अबू बकर सिद्दीक फिर खड़े हो गए, सुना नबी, आज मैंने रब की रजा के लिए नफली रोजा भी रखा है। बात यहां खत्म हो गई। फिर मुखबर सादिक की खुशखबरी सुनो, मेरे सहाबा गवाह बन जाओ, जिसमें ये चारों साफ होंगे, मिस्कीन को खाना खिलाना, रोजा रखना और जनाजे पे जाना, बीमार की इयादत करना, मैं मोहम्मद अरबी उसको जन्नत की जमानत देता हूं। साहबा ने अर्ज किया, अल्लाह के नबी, ये इनाम सिर्फ अबू बकर सिद्दीक के लिए है या किसी और के लिए भी? मेरे आका ने फरमाया, सुबह क़यामत तक मुहम्मदी, मेरा कलमा पढ़ने वाला, इन चार खूबियों को अपनाएगा, मैं उसको भी जन्नत की खुशखबरी अता फरमाता हूं। हम सारे के सारे बंदे अल्लाह की रजा के लिए बीमार की इयादत कर सकते हैं। हम सारे के सारे बंदे अल्लाह की रजा के लिए जनाजे में शिरकत कर सकते हैं। हम सारे के सारे बंदे अल्लाह की रजा के लिए मसाकीन को खाना भी खिला सकते हैं। हम सारे के सारे बंदे अल्लाह की रजा के लिए नफली रोजे भी रख सकते हैं। ये काम तुम करो, जन्नत की बुशारत अल्लाह के पैगंबर ने अता फरमाई है। वज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वक़ूलू लिन्नासी खुसना। तुम्हारा रब तुम्हें हुक्म देता है, अपने मुंह से अच्छी अच्छी बातें किया करो। क्या किया करो? अच्छी अच्छी। तुम अच्छी बात नहीं कर सकते, खामोश रहा करो, वैसा ही टाइम ज़ाया ना किया करो। दिल आज़ारी की बात ना कर, किसी की इज्जत उछालने की बात ना कर, किसी को दुख पहुंचाने की बात ना कर, किसी को सदमा पहुंचाने की बात कर। अच्छी अच्छी बात करो। जब तुम अच्छी बात करोगे, इत्तिफाक की बात करोगे, इत्तेहाद की बात करोगे, नबी मुख्तार की उम्मत को जोड़ने की बात करोगे, खालिक़े कायनात तुम्हारे लिए अपनी रहमत के सारे दरवाजे खोल देगा। आगे फरमाया वाक़ीमुस्सलाह व आतुज़ ज़कात, 5वें नंबर पे अल्लाह का हुक्म, माँ बाप की इताअत व इत्तिबा, मसाकीन का हक, यतीमा का हक और पड़ोसियों का हक बयान करने के बाद आगे कुरान कहता है वाक़ीमुस्सलाह व आतुज़ ज़कात। फिर जब तू नमाज पढ़ेगा ना, तुझे नमाज पढ़ते हुए मजा आएगा, लुत्फ आएगा। ज़ोहर की नमाज पढ़ेगा, असर पे जाने को दिल करेगा, असर की नमाज पढ़ेगा, मगरिब पढ़ने को दिल करेगा, मगरिब की नमाज पढ़ेगा, इशा पढ़ने की दिल करेगा, इशा पढ़ के सोएगा, इस बात का मुंतज़िर होगा कि कब सुबह की आज़ान हो, मैं अपनी रब की बारगाह में हाजिर हो जाऊं। हमें नमाज में मजा इसलिए नहीं आता कि हम हुकूकुल इबादत पूरे नहीं करते। आखिरी बात है और पल्ले बांधे, बात इबादत से बनेगी नहीं। अल्लाह चाहे तो बेनमाजियों को माफ कर दे, मगर अल्लाह पड़ोसियों के हक माफ नहीं करता। अल्लाह चाहे तो गुनहगारों को जन्नत में भेज दे, अल्लाह रिश्तेदारों के हक माफ नहीं करता। फरमाया अमाल में कोताही हो जाए, अल्लाह इस बात पे कादिर है बंदे को माफ कर दे, लेकिन बंदे की हक तलफी की है, बंदे की साथ ज्यादती की है, बंदे की आबरू रेजी की है, बंदे पे जुल्मन हाथ उठाया है, जुल्म और ज्यादती की है, जमीन पे कब्जा किया है, उसकी इज्जत और आबरू पे डाका डाला है। जब तक कि दुनिया में उसके साथ तय करके मामला, उससे माफी नहीं मांगोगे, अल्लाह की बारगाह से माफी मिल सकती। इसलिए इकबाल ने कहा था, ज़बान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, ज़बान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। मुसलमान की तारीफ अल्लाह के पैगंबर ने यूं बयान फरमाई, एक मुसलमान मशरक का है, दूसरा मगरब का है। जब कांटा चुभे मशरक वाले को, मगरब वाला उसका दर्द महसूस ना करे, वो कामिल मुसलमान हो सकता। दूसरे मुकाम पे फरमाया कि आओ तुम्हें कामिल मुसलमान की बात बताऊं। या रसूलल्लाह उसकी पहचान क्या है? फरमाया कामिल मुसलमान की अलामत और पहचान है कि वो अपने हाथ से भी किसी को तकलीफ नहीं देता, अपनी ज़बान से भी किसी को तकलीफ नहीं देता। ये कामिल मुसलमान की पहचान है। हम सारे के सारे
इस दुआया तकरीब में आए हैं, ख़वातीन व हज़रात हैं, छोटे हैं और बड़े हैं, इसलिए आए हैं। हम सारे दुआ करेंगे, ज़िक्र व अज़कार करेंगे, तस्बीह व तहलील करेंगे, ज़िक्र खुदा होगा, ज़िक्र मुस्तफ़ा होगा, और मतलूब भाई के लिए बिलखुसूस और सरवर कायनात अलैहिस्सलाम की सारी उम्मत के लिए बिलउमूम बख्शिश की दुआ होगी। हम सारे के सारे ताज़ियत करते हैं खालिक़ कायनात मरहूम मग़फ़ूर के जो बेटे हैं, उन जो बेटियां हैं, उनके लिए अच्छे असबाब पैदा हों, जो उनके भाई हैं उन्हें सब्र जमील मिले। अल्लाह पाक हम सबको इस दुनिया फ़ानी पर रख कर आखिरत की तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह।